Good morning, students. Today we are going to start a new chapter from your practice book, that is compound sentence. So, we already read about sentence and its kinds in our previous lecture. Now we are going to study about compound sentence. So, what is compound sentence? Sentences can be constructed in three ways. यानी कि सेंटेंसेस जो हैं जब हम उनको फ्रेम करते हैं तो वो थ्री वेज़ में हम उनको फ्रेम कर सकते हैं, और वो थ्री वेज़ कौन से हैं? सिंपल वे में, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स वे में. सो एज यू ऑल नो दैट our topic is compound sentence. We are going to give much stress on the compound sentence, but I'm going to give you the quick explanation about these two sentences also. So here we are going to start with the simple sentence. Simple sentence. What is simple sentence? A simple sentence is one which has only one subject and one predicate. Simple sentence जो है वो क्या होता है, जिसमें सिंगल सब्जेक्ट है और सिंगल प्रेडिकेट है. एंड what is subject and predicate? As you are in 7th standard, so I think you are well aware of what is subject and predicate, but I am going to give you a little explanation about subject and predicate. Subject is that जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड प्रेडिकेट इज़ कि क्या बात कर रहे हैं. लाइक द ट्री इज़ ह्यूज. किसके बारे में बात हो रही है? ह्यूज क्या है, बड़ा क्या है? ट्री. इट्स अ सब्जेक्ट, इसके बारे में बात हो रही है. इज़ ह्यूज, क्या बात हो रही है कि वो बहुत बड़ा है. इट्स अ प्रेडिकेट. लाइक हिज करेज वॉन हिम ऑनर. किसके बारे में बात हो रही है? हिज के बारे में, एक लड़के के बारे में. क्या बात हो रही है? करेज वॉन हिम ऑनर. सो हिज एंड हिम इज सब्जेक्ट, इनके बारे में बात हो रही है. हिज भी वही है, बॉय के साथ ही हिज और हिम लगता है. एंड करेज वॉन ऑनर इज प्रेडिकेट. So what is a simple sentence which has one subject and one predicate? And one more sign of simple sentence is this: in a simple sentence there is one finite verb. It's a finite verb. We can call is a finite verb. A simple sentence expresses a single complete thought. A simple sentence contains only one finite verb. That tree is huge. Tree is subject, is huge is predicate, but we can also call is a finite verb. and यहाँ पे जो है वो single finite verb यूज़ होता है. आप बोलोगे कि दैट ट्री इज़ ह्यूज. नेक्स्ट हम एक और सेंटेंस बना देते हैं, इसी के साथ में लाइन लिख देते हैं. उसमें भी अगर फाइनाइट वर्ब यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स इट्स नॉट अ सिंपल सेंटेंस. दिस टी इज़ ब्लैक. दिस टी किसके बारे में बात हो रही है? टी के बारे में. इज़ सब्जेक्ट, इज़ ब्लैक इज़ प्रेडिकेट, एंड इज़ ऑल्सो अ फाइनाइट वर्ब. सो इट्स सिंपल सेंटेंस. मूविंग ऑन टू कॉम्प्लेक्स वन. व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? A complex sentence has only one independent clause and one or more dependent clause. Clause. What is clause? Clause is a sentence which has its own subject and predicate. It's a clause. Like, for example, they rested when evening came. किसने रेस्ट की जब इवनिंग आई? दे. इट्स अ सब्जेक्ट एंड द अदर पार्ट इज predicate. So here complex sentence has only one independent clause and one or more dependent clauses. What is independent and what is dependent? As the name suggests, independent, जो किसी पे डिपेंड नहीं होता, एंड डिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड है. और डिपेंड किस पे रहना है? ये आपस में क्लॉजेज में ही डिपेंड और इंडिपेंडेंट रहते हैं. इंडिपेंडेंट वो होता है जो एक
सेंटेंस है वो खुद में ही अपनी एक कंप्लीट सेंस जो है वो एक्सप्रेस करता है. लाइक यू ऑलरेडी I think you already read about it. Independent clause is that they rested. It's an independent clause because it suggests they rested, a complete sense. They rested, उन्होंने रेस्ट की. It's a complete one. When evening came, क्या हुआ when? जब इवनिंग आई तो क्या? ये तो आधा सा इनकम्प्लीट सा सेंटेंस हमें लग रहा है. सो दैट इज़ व्हेन इवनिंग केम, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, दैट इज़ डिपेंडेंट. उसको डिपेंड होना पड़ रहा है. और जो अपने आप में कंप्लीट है वो आज़ाद है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट, फ्री है. दे रेस्टेड, वो इंडिपेंडेंट है. लेकिन व्हेन इवनिंग केम को डिपेंड रहना पड़ रहा है किस पे? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, यानी कि दे रेस्टेड पे. उसको व्हेन इवनिंग केम को अपनी कंप्लीट सेंस बनाने के लिए दे रेस्टेड पे डिपेंड रहना पड़ रहा है. दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स सेंस. और कॉम्प्लेक्स सेंस का एक जो आपको याद रखने के लिए ये है कि उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज सिर्फ एक ही होता है. और जो सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं. लेकिन जो मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो सिर्फ एक होगा. इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं. डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज भी बोलते हैं. ठीक है, ये आपको याद रखना है. They rested when evening came. The sentence consists of two parts. They rested and when evening came. They rested make a good sense by itself and hence could stand by itself as a complete sentence. It is therefore a principal or main clause or independent clause. The clause when evening came cannot stand by itself and to make good sense it is dependent on the clause they rested. It is therefore called a dependent or subordinating clause. So it's a complex sentence. यहाँ पे क्या है? One is एक आ गया मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज. और यहाँ पे वन क्या आ गया? subordinating और डिपेंडेंट क्लॉज. सो यहाँ पे क्या है? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज. तो यहाँ पे वन इंडिपेंडेंट है, वन डिपेंडेंट है. इट मीन्स इट्स अ कॉम्प्लेक्स वन. सो नाउ मूविंग ऑन टू कंपाउंड सेंटेंस. Compound sentence. A compound sentence is one made up of two or more principal or main clauses or independent clauses. इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी बोला जाता है और मेन क्लॉज भी बोला जाता है. तो यहाँ पे क्या होगा? इस सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में था सिंगल या फिर वन इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज. लेकिन यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉज होंगे या इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे. ये आपने, अगर आपको कहीं भी डिटरमाइन करना है कि कौन सा सेंटेंस है तो आपको पहले उनके जो हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में देखना होगा कि इनमें से कौन सा जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, कितने आते हैं. अगर दो से ज़्यादा आ रहे हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज इट मीन्स इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस. अगर सिंगल आ रहा है मेन क्लॉज और मोर देन वन क्लॉज इज सबॉर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट तो इट मीन्स दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वन. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे मोर देन वन मेन क्लॉज, मोर देन टू जो हैं वो मेन क्लॉज होंगे या मोर देन वन मेन क्लॉज. और बाकी सबॉर्डिनेटिंग क्लॉजेस का यहाँ पे कोई इशू नहीं है. वो मोर देन वन भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं, मोर देन थ्री भी हो सकते हैं. लेकिन जो मेन क्लॉज या जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं वो दो या दो से ज़्यादा ही होंगे. तो हमें कभी भी डिटरमाइन करना है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है. अगर दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉज उस सेंटेंस में है इट मीन्स दैट इज़ द कंपाउंड सेंटेंस. अगर सिंगल मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो इट मीन्स इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो हियर द मून वॉज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे. This sentence consists of two parts. The moon was bright, clause 1. We could see our way, clause 2. The moon was bright. Moon आज बहुत ही shining कर रहा है. We could see our way.
हमें अपना रास्ता अच्छे से दिख रहा है। इन दोनों की एक कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं ये कोई भी मुझे डिपेंडेंट नहीं लग रहा। सो दीज टू पार्ट्स आर जॉइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबसे बड़ा जो कंपाउंड सेंटेंस को जज करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि कंपाउंड है या क्या है, दो सेंटेंसेस जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जो हैं वो उनको ज्वाइन किया होता है, दो मेन क्लासेस को उनके साथ ज्वाइन होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, एंड बट। तो ये चीज़ें जो हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती हैं। ईच पार्ट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। वी फर्दर नोटिस दैट ईच क्लॉज मेक्स अ गुड सेंस बाय इटसेल्फ एंड हेंस कुड स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ सेपरेट सेंटेंस। ईच क्लॉज इज देयरफॉर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर एंड इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। जब देखा जा रहा है कि ये दोनों जो हैं ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, तो इट मीन्स दिस सेंटेंस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। सेकेंड वन, आई गॉट द मैप ऑफ द फेयर बट आई कॉन्ट फाइंड द फूड स्टॉल। ये क्या है? बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आई गॉट द मैप ऑफ द फेयर, फर्स्ट क्लॉज, मेरे को फेयर का एक मेले का मैप मिल गया, कंप्लीट सेंस शो कर रहा है। क्लॉज टू, आई कॉन्ट फाइंड द फूड स्टॉल, मुझे फूड स्टॉल नहीं मिल रहा, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। दीज क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, दे शो टू थॉट्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर एज कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। They are they are of equal importance and can convey complete meaning or sense by themselves. ये complete meaning अपने आप में एक बताते हैं, एक बना रहे हैं, तो it means it's a complex sentence. It's a compound sentence, sorry. So here we are going to end our chapter today. In my next lecture, I will be with some solved worksheets and some worksheets for your homework. Till then, goodbye.